invite. Namaskar. Today also with few declarations and a beautiful prayer with an invocation, we'll start this beautiful episode. Today also, let us proudly declare that we are divine beings. We are joyous entities. Our innate consciousness itself is joy. As long as we continue into this embodiment, as long as we continue with this embodiment, whatever may happen, however tense may be the situation, however worst may be the scenario, whatever may happen, in spite of all the intricacies I am facing, in spite of the hardships I am facing, still I will be joyful, I will be blissful, I will be in the state of ecstasy and exuberance. This is a promise. This is my modus operandi. This is my lifestyle. With this declaration, I welcome each and everyone, every sincere aspirant for this beautiful spiritual discourse. Jai. गुरुजी कह रहे हैं कि आज का जो सत्र है, इसे भी एक सुंदर डिक्लेरेशन के साथ हम लोग आरंभ करेंगे। डिक्लेरेशन कि मैं एक आनंद जीवी हूं, सदा 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 आनंद में रहूंगा, चाहे परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों ना हो, चाहे कितनी भी तीव्र परिस्थितियां क्यों ना हो, कठिन से कठिन समस्याएं क्यों ना हो, चाहे कितने भी दुख, कितनी भी परेशानियां मेरे जीवन में क्यों ना आ जाए, इन सारी कठिन परिस्थितियों के बावजूद मैं सदा आनंद में ही रहूंगा। ऐसा आज मैं ये घोषणा करता हूं कि मैं सदा आनंद में रहूंगा, क्योंकि मैं ब्रह्मानंद स्वरूप हूं, मैं आनंद जीवी हूं और मैं सदा इसी ब्रह्मानंद में रहूंगा। ये मैं अपने आप से, ये मेरी शपथ है, यही मेरी घोषणा है। Yes. So, I have promised you that I will teach you the grandest scripture called Bhagavad Gita. And before starting today's episode, let us recap what we have learned for the last 2 days. The first thing is the grandest, beautiful Gita is equivalent to all the scriptures of Sanatana Sampradaya. And another thing is the scenario where the Bhagavad Gita has been taught is entirely different from the other scenarios where the gurus have taught to their students, aspirants. Okay, fine. But yesterday, we have started the actual teachings of Lord Sri Krishna. As I have made it very clear that though Lord Sri Krishna has begun to teach Bhagavad Gita in chapter number 2, verse number 2, but the exact nectar, the elixir of Bhagavad Gita has been taught in chapter number 2, verse number 11, with one beautiful opening, initiation. The very first word uttered by Lord Sri Krishna is Asochan. Asochan. And I have also told you that actually the insight of that beautiful teaching is a scholarly being, from the point of view of scholarly being, in the thinking pattern of a scholarly being,
The term death doesn't exist. That is why a scholarly being never ever worries for death and the consequences of death, because he doesn't believe the death. So you need not worry for the concept called death. So you are acting like a scholarly being, but still you are suffering with the fear of death. If you are truly an enlightened being never cares for the concept called death, because in the enlightened point of view, there is no term called death. There is no term called death. So this was being totally misunderstood and mispresented by the other analysts. They have misunderstood this and they have begun to teach us wrongly and to guide us also wrongly. They were believing as if Lord Sri Krishna was telling, "Oh Arjuna, you are worrying for those people who are not worthy of worry. You are worrying for those people who are not worthy." As if Lord Sri Krishna has told that you can worry for some people, you should not show any tragedy or worry for some people because they are not worthy. So that is the actual thing we have learned for the last 2 days. So step by step, bit by bit, I will tell you so that she can translate, Mamta ji can translate in Hindi. So step by step, bit by bit, I'll tell you. So the actual Bhagavad Gita, the nectar, the elixir, the beautiful teachings, the beautiful prescription is not chapter number 2, verse number 2. It is chapter number 2, verse number 11. Yes. हालांकि भगवत गीता में कृष्ण का उपदेश द्वितीय अध्याय के द्वितीय श्लोक से आरंभ हो गया था, लेकिन श्री कृष्ण के ज्ञान के अमृत बिंदु, उस बिंदु का आरंभ सेकंड द्वितीय चैप्टर के 11वें श्लोक से स्टार्ट हुआ. Okay. And the grandest opening itself, he has uttered a beautiful, grandest term, asocyan. The very crux of Bhagavad Gita, the opening of the Bhagavad Gita itself is, it is initiated by the word asocyan. Asocyan, asocyan, asocyan. So श्री कृष्ण ने जिस यूतले लागे तन फेस ना कनबेचिट्ला अब बम्म తీసి क्वेश्चन मार्क्स. Yes, so please. श्री कृष्ण ने जिस एक अमृत बिंदु तुल्य शब्द से, जिस शब्द से इस अपने उपदेश का, अपने ज्ञान देना जो आरंभ किया है, वो अमृत तुल्य शब्द है असोच्यान. अशोच्यान, अशोच्यान, अशोच्यान. यही एक मंत्रात्मक शब्द है, ये एक मंत्र है जिससे श्री कृष्ण ने अपने ज्ञान का उपदेश देना आरंभ किया. असोच्यान नामक शब्द से वो अभिमंत्रण किया और उसी शब्द से वो भगवद गीता का शुरुआत हुआ एक्चुअल. एंड वन मोर थिंग इज, actually the insight of that beautiful mantra is, oh human being, you should never ever get depressed, never ever get disappointed, never ever tragedy should be reflected within you. In spite of the intricacies, in spite of the melancholies you are facing in the life, still you have got to be joyful, blissful. That was the first insight. I'll teach you the second insight. Yes. तो गुरुजी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने असोच्यान शब्द से जो संदेश दिया मानव जाति को कि हे मानव, चाहे कितनी भी कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन कभी भी निराश नहीं होना, हताश नहीं होना. किसी भी परिस्थिति में
निराशा, चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति हो, कितना भी बड़ा सदमा हो आपको, या कुछ भी हो, उसको अपने अम, उससे अपने अंतर में नहीं लेना, और इससे कभी भी निराश नहीं होना। Okay. And the second insight is, in the point of view of a scholarly being, in the prism of a scholarly being, there is no term called death. He doesn't believe in death because he knows pretty well that there is no death. You are worrying for the concept which is not worthy. You have been considering the term death. You have been considering the concept death, and you're getting worried, whether it is your death or somebody's death. Actually, you have considered the term called death. Because you have considered the term called death, you are worrying. The truth is, from the scholarly being, from the point of view of an enlightened being, if you could see the point of view of an enlightened being, there is no word called death. He doesn't believe in the concept called death. That is the thing. Second thing. तो एक ज्ञानी के जीवन में, उसके दृष्टिकोण में, मृत्यु नाम का शब्द अस्तित्व में ही नहीं रहता। उसके मृत्यु नामक का शब्द, मृत्यु नामक का अंश, मृत्यु नामक अंश एक ज्ञानी के जीवन में, उसके विचार संविधान में, उसके दृष्टिकोण में मृत्यु नामक अंश रहता ही नहीं है, विद्यमान ही नहीं होता है। एक ज्ञानी कभी भी मृत्यु को कभी भी कंसिडर नहीं करता, उससे मृत्यु को कभी भी वो उसकी चिंता का कारण नहीं बनती, क्योंकि मृत्यु उसकी चिंता का कारण होती है मृत्यु। तो जब मृत्यु शब्द ही उसके लिए अस्तित्वहीन है, तो उसे मृत्यु की चिंता भी नहीं सताती है। तो एक ज्ञानी के जीवन में मृत्यु नामक अंश होता ही नहीं है। एक महत्वपूर्ण योगीश्वर के दृष्टिकोण में मृत्यु नामक एक अंश का अस्तित्व ही नहीं रहता है। फाइन, बट यू आर pretending as if you are an enlightened being, still you are considering death. From the point of view of an enlightened being, there is no term called death. You are pretending as if you are an enlightened being, but you are worrying for the concept called death. Truly speaking, the term death will not be there in the thinking pattern of the enlightened being. Please. So, क्योंकि आप ऐसा मान रहे हैं कि आप एनलाइटेंड बीइंग है, तो और आप ऐसा मानकर आपके जीवन में ये डेथ नाम का जो अंश है, इससे आप बिल्कुल गणना में नहीं ले रहे हैं। So if you understand the true meaning of the 11th sloka, Lord Sri Krishna through Arjuna has taught the entire humanity that there is no term called death. That there is no term called death, and you should not consider the concept called death, and accordingly you should come out of the clutches of fear of death, and accordingly you should come out of the clutches of worrying for the death. Yes. तो श्री कृष्ण यहाँ पर भगवत गीता में इस द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक के माध्यम से, अर्जुन के माध्यम से सारी मानव जाति को ये संदेश दे रहे हैं कि मृत्यु नामक अंश है ही नहीं, अस्तित्व में ही नहीं है, और ये कभी भी आपकी चिंता का कारण नहीं होना चाहिए। एक मानव जाति को कभी भी मृत्यु नामक शब्द, उसकी से उपजी हुई चिंता या उसका भय उसकी जीवन में कभी भी होना नहीं चाहिए। ऐसा संदेश श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से सारी मानव जाति को दे रहे हैं। But it was being misunderstood, misinterpretation has happened there, and they have begun to wrongly interpret the grandest teachings as if Lord Sri Krishna was telling us, you should worry for these people, you should not worry for these people.
If these people are going to die, you have got to be, you can go for a tragedy. You can choose for a tragedy. If these people are going to die, you should enjoy their death. Like that, the very first verse of the Bhagavad Gita itself has been poison from my point of view. Let me be very frank. Yes. सो बड़े बड़े आध्यात्मिक वेत्ताओं ने, लगभग सभी ने, इस जो मंत्रात्मक शब्द है अशोच्यान, इसका अर्थ कुछ ऐसा निकाला कि आपको कुछ व्यक्तियों के लिए शोक करना चाहिए जो कि शोक करने योग्य हैं, और कुछ व्यक्तियों के लिए आपको शोक नहीं करना चाहिए क्योंकि वो शोक करने के योग्य नहीं है। तो इस जो मंत्रात्मक शब्द है उसे उन्होंने कुछ व्यक्तियों के लिए सीमित कर दिया है कि ठीक है, ये व्यक्ति यदि इस धरती से चले जाते हैं तो आपके जीवन में एक भारी आघात और सदमा लग जाना चाहिए, लेकिन कुछ व्यक्ति इस योग्य ही नहीं है। और इस तरह से उन्होंने इस मंत्रात्मक शब्द, एक अद्भुत शब्द, चमत्कारी जो मंत्र है, अशोच्यान नामक मंत्र है, उसे पूरी तरह से उसका अर्थ ही बदलकर उसे एकदम निरर्थक और उसका विपरीत अर्थक कहना चाहिए, उसका विपरीत अर्थक इस मंत्र को बना दिया है। Yes. So that is the teaching of the first sloka, chapter number 2, verse number 11. Then why? See, then naturally the aspirant called Arjuna will have a doubt, no? Why should I not worry? Why should I not consider death? Or people are dying before my eyes. Even I am scared of my death. Once, if I happen to die, everything is lost. Everything is lost. My life itself is collapsed. Hare, how come you are asking me not to worry, not to consider death when people are dying before me, when children are dying, elderly people are dying, and there is a possibility of myself getting death? How do you advise me not to consider death? And how do you ask me not to worry for death? That will be naturally, that will be the chaos which has happened in the thinking pattern of Arjuna. तो गुरुजी यहाँ पे कह रहे हैं कि अब चलिए, मान लिया कि मृत्यु के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए, मृत्यु को प्राधान्यता नहीं देनी चाहिए, मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि जब हमारे सामने हमारे सगे संबंधी, हमारे प्रियजन सारे मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, हमारे सामने छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, बूढ़े व्यक्ति मर रहे हैं, और ऐसी भी संभावना है कि कल को मैं ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं, तो जब हम ऐसा देख रहे हैं हमारी आंखों के सामने, तो हम कैसे मृत्यु को नकार दें, कैसे उससे इनकार कर दें, और कैसे उससे प्रभावित ना हो, कैसे उसे ना माने। तो इस मृत्यु के भय से हम उसे कैसे ना माने और कैसे उसे नकारें। So to clarify that confusion which has happened in the thinking pattern of Arjuna, Lord Sri Krishna has categorically taught us a beautiful sloka in chapter number 2, verse number 12. If you could understand the insight of that particular sloka, believe me, by default, death and the fear of death, worrying for death, all the three will be vanished instantaneously within you. So, अर्जुन की इस मनस्थिति को समझते हुए, उसके अंतर में जो भ्रम है उसको, और वो जो उलझन है उसकी उलझन को समझते हुए, श्री कृष्ण ने द्वितीय अध्याय के 12वें श्लोक में ही उसकी अर्जुन की और हम सब की इस उलझन का उन्होंने समाधान किया है कि कैसे इस मृत्यु के भय से हम उबरें या उससे पार जाएं। So, इस संदेश से जो संदेह अर्जुन में उत्पन्न होने का संभावना है, उस संदेह को क्लैरिफाई करने के लिए बहुत बढ़िया श्लोक चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 12 में Lord Sri Krishna has begun to teach something beautiful. Please go through, and I believe me, my dear aspirants, forget about entire Bhagavad Gita. I know you are so busy. I know you are chasing for
physical life. We are all being chased. We are all being chased by the physical life. But believe me, forget about the entire Bhagavad Gita. At least if you could understand the insight of this particular sloka. Again, I repeat, forget about the entire Bhagavad Gita. Forget about the entire Sankhya Shastra. But if you could understand the insight of this particular sloka, you'll come out of the clutches of humanity on the spot. And the concept called death and the fear of death and worrying, considering death. Hello? Hello? Poinda? Voice రాట్లేదా? వినిపించట్లేదు. We can't hear. చూడు సుభాష్ని. Yeah, it has come. Okay. Guruji, it has come. Yeah. Yes, fine. So believe me, my dear aspirants, I know we are all busy nowadays. Time is precious for us. I can understand you will not be able to spare time for understanding the entire 700 slokas of Bhagavad Gita. But I am appealing to you, at least if you could understand the insight of this particular sloka, the first and foremost thing is you will come out of the clutches of humanity. Number two, the concept called death, the concept called fear of death, the concept called worrying, considering the concept of death, all the three will be vanished. Believe me. Yes. तो गुरुजी यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि आप सब कितने व्यस्त हैं अपने दैनिक जीवन में, अपने रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में आप पूरी तरह से व्यस्त और लीन हैं। तो यदि आपको पूरी संपूर्ण भगवत गीता पढ़ने के लिए, जानने और समझने के लिए यदि समय ना भी हो, तो यदि आपने केवल इस श्लोक का वास्तविक गूढ़ अर्थ अगर समझ लिया, इसको पूरी इसकी जानकारी आपको प्राप्त हो गई, तो आप, वो कह रहे हैं कि इसके 3 आपको लाभ मिलेंगे। सबसे पहले तो आप मानवता के चंगुल से निकल जाएंगे। आप जो ह्यूमैनिटी है, मानवता के चंगुल में से आप पूरी तरह से बाहर आ जाएंगे। और दूसरी बात, मृत्यु नामक अंश आपके लिए बिल्कुल अप्रधान हो जाएगा। आपके लिए बिल्कुल आप उसमें मानने, आप नकार सकेंगे उस शब्द को, उस अंश को, मृत्यु नामक अंश। और मृत्यु का भय, मृत्यु की चिंता आपके जीवन से सदा 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 के लिए समाप्त हो जाएगा। Beautifully explained. Yes. So now let us understand the insight of chapter number 2, verse number 12. Please read it. Please read the sloka. अध्याय 2, श्लोक नंबर 12। नत्वे वाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। Okay, again. नत्वे वाहम जातु नासम नत्वे वाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपाः न चैव नेमे जनाधिपाः। Okay. न चैव न च भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। Okay. अर्थ इसका अनुवाद, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। Okay, English. So never was there a time when I did not exist, nor you, nor all these things, nor in the future shall any of us cease to be. So never was there a time when I did not exist. Never was there a time where I did not exist, nor you, nor all of the things, nor in the future shall any of us cease to be. ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, ना तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा
ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। So it's something miracle. Lord Sri Krishna, I consider him as he is having authenticity to teach. And Lord Sri Krishna, the miraculous teaching is, he says that there was no time when I was not there, when you are not there, when all of these kings are not there. In the sense, he says that there was no time, you are not there, where you are not there, where I am not there, where these kings are not there. So the insight of that particular teaching is, all of us, including Lord Sri Krishna, are there in the existence since. Including Lord Sri Krishna, all of us, Lord Sri Krishna, all of us, we were there, we were enjoying this existence since, S-I-N-C, since. The first and foremost thing, if you are interested, I advise you to write down that including Lord Sri Krishna, every one of us were celebrating this existence since. हिंदी में बताओ। तो गुरुजी यहाँ कह रहे हैं कि मैं ऐसा मानता हूं कि श्री कृष्ण इस ज्ञान को बताने के, इस ज्ञान को उपदेश करने के सच्चे अधिकारी हैं। उन्हें ये अधिकार है, उसमें उन्हें साधिकारता है, उनमें साधिकारता है, तो वे ही सच्चे अधिकारी हैं। और फिर गुरुजी ये कह रहे हैं कि इस श्लोक में, इस श्लोक में श्री कृष्ण हमें ये कह रहे हैं कि न तो कोई ऐसा ही समय था कि तू नहीं था या मैं नहीं था, ये राजा लोग नहीं थे। तो इसका अंतरार्थ वो ये कह रहे हैं कि मैं, तू और श्री कृष्ण सहित हम सब, सिंस यानी कि मूल से, आदिकाल से हम सब अस्तित्व को एंजॉय कर रहे हैं, हम सब अस्तित्ववान हैं और हम सब अस्तित्व को उत्सव मना रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। Fine, perfect. And one more thing you have got to understand is, all these days we were believing that as if Lord Sri Krishna was there in the beginning, but we were not there in the beginning. Lord Sri Krishna wanted to create us, was suffering with loneliness, as if he wanted to create, he has created. Later on, in the second phase, we have taken birth. But Lord Sri Krishna says, all of us, including Lord Sri Krishna, all of us has emerged into existence at a stretch. All of us, including Lord Sri Krishna, has emerged into existence at a stretch. It is not that Lord Sri Krishna was senior, we are all juniors. The implied thing is, all of us, including Lord Sri Krishna, has emerged into existence at a stretch. Supposing if Lord Sri Krishna has taken birth in the beginning, where we were not there in the existence, later on, because to avoid his loneliness or for some other reason, if he has created and later on if he emerged into existence, he would never have said like that. He would have only told that आदि काल में मैं था, लेकिन आप सब उपस्थित नहीं है, आप सब नहीं है, मैं आपको क्रिएट किया, बाद में पिछले आप सब आए, ऐसा बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोला ना। So the nectar is, the elixir is, the nucleus is, सारभूत अंश है कि श्री कृष्ण सहित हम सब एक ही समय में जन्म लिया और अस्तित्व में आ पहुंचे। श्री कृष्ण सहित हम सब एक ही समय पर अस्तित्व में आ पहुंचे। प्लीज एक्सप्लेन। सो आज तक गुरुजी कह रहे हैं कि आज तक हम सभी इसी भ्रम में थे कि मानो कि श्री कृष्ण ने पहले श्री कृष्ण अस्तित्व में थे और फिर उन्हें थोड़ी सी, वे अकेले थे बिल्कुल, और कुछ भी नहीं था, कोई सृष्टि नहीं थी, केवल श्री कृष्ण विद्यमान थे। और फिर उन्हें थोड़ी सी बोरियत महसूस हुई और उन्होंने फिर
सृष्टि को बनाया और हम सबको बनाया। तो अभी तक हम इसी भाव में थे और इसी अज्ञान में थे। लेकिन यहाँ गुरु जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से बिल्कुल सटीक शब्दों में हमें ये बता रहे हैं कि श्री कृष्ण सहित मैं, आप, हम सब एक ही समय में, एक ही काल में अस्तित्व में आ पहुंचे। यदि श्री कृष्ण ये कहना चाहते कि मैं पहले था और मैंने फिर अपनी बोरियत को और अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए आप सबका की सृष्टि की, तो वो यही कहते पहले कि पहले मैं अकेला विद्यमान था और मुझे अकेलापन महसूस हुआ, मुझे वीरानापन महसूस हुआ, इसीलिए तब मैंने आपकी रचना की और आप सब तब अस्तित्व में आए। लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं, तुम और ये सारे राजा लोग, यानी कि ये जो भी प्रजा आज अस्तित्व में है, सब के सब एक ही समय में, एक ही काल में और आदिकाल से हम सब अस्तित्व में हैं, यानी कि हम एक ही समय में अस्तित्व में आ पहुंचे हैं। Yes. The nucleus of this particular sloka is श्री कृष्ण सहित हम सब लोग अस्तित्व का ये माहौल, अस्तित्व का ये त्योहार शुरुआत से ही हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। द सेकंड थिंग इज श्री कृष्ण सहित हम सब एक ही समय पर अस्तित्व में आ पहुंचा। That is the second thing. Third one is he said that there was no time where we were not there. ऐसा काल नहीं है कि जब हम नहीं है, एक काल नहीं है जब हम सब नहीं है। लेकिन आपको मालूम है ना, सृष्टि बीच में आया। अगर इसका अंतरार्थ का हम जान सकते हैं, इसका अंतरार्थ का जानकारी हमको मिल गई, तो ऐसा महसूस होने लगा, ऐसा स्पष्ट होता है कि सृष्टि के पहले से ही हम अस्तित्व में हैं। हम सृष्टि से नहीं आया, सृष्टि भी हमारे से ही आया, सृष्टि भी हमारे से ही पैदाइश हो। हम सृष्टि से पैदाइश नहीं हुआ, सृष्टि भी, बल्कि हमारे से ही हम सृष्टि को भी जन्म दिया। Because yes, see, there were times when there was no creation, there was no सृष्टि नहीं, but he says एक काल नहीं है कि जब हम नहीं है, so we were there in the existence always. Yes, so it is implied that we are not from the creation is also from our grandest blessing. That is why we are supreme beings, that we are pure, uncontaminated by creation, because it is not the creation has created us, it is the thing is we have created the creation. That is the thing. तो गुरुजी यहाँ कह रहे हैं कि इस श्लोक के सारभूत अंश अगर हम देखें तो ये 3 इसमें से बिंदु उभर के आते हैं। ये सबसे पहला बिंदु है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम सब, श्री कृष्ण सहित हम सब आदिकाल से लेकर अपने अस्तित्व का उत्सव मनाते आ रहे हैं। हम सब अपने अस्तित्व को एंजॉय करते हुए उसका आनंद लेते आ रहे हैं। दूसरा बिंदु कि हम श्री कृष्ण सहित हम सब एक ही समय में अस्तित्व में आ पहुंचे हैं। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण पहले आए और हम सब बाद में आए। तो ये दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु गुरुजी ये बता रहे हैं कि ऐसा कोई समय ही नहीं था कि हम अस्तित्व में नहीं थे, मैं नहीं था, तू नहीं था, या ये सब नहीं थे। तो कोई समय ऐसा था ही नहीं कि हम अस्तित्व में नहीं थे। अर्थात ये सृष्टि बीच में आई और बीच में चली गई, वापस चली गई। तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से हम ये समझ सकते हैं कि सृष्टि हमसे आई, क्योंकि हम तो हमेशा अस्तित्व में विद्यमान थे, हम सब,
और सृष्टि हमसे उत्पन्न हुई। ऐसा नहीं है कि सृष्टि से हम उत्पन्न हुए, सृष्टि हमसे उत्पन्न हुई। ये तीसरा बिंदु। And fourth one is, he also said that इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। ना ऐसा है, ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। ना ऐसा ही है, इसके आगे हम सब नहीं रहेंगे। That it is implied that we are going to exist forever and ever and ever and ever and ever. Maybe this embodiment may perish, the planet may perish after a while, this galaxy may perish, but still we continue to exist forever and ever and ever. Yes. तो इसका चौथा बिंदु ये है कि इस श्लोक के आखिरी में लिखा हुआ है, आखिरी पद में लिखा हुआ है कि ऐसा कोई ना, तो ऐसा कोई काल होगा कि हम सब नहीं रहेंगे, यानी कि भविष्य में भी हम सब सदा अस्तित्व में रहने ही वाले हैं। तो हम सभी कभी भी अस्तित्वहीन नहीं हो सकेंगे, अर्थात हम सब शाश्वत रूप से विद्यमान रहेंगे। तो ये जो हम सब जो शाश्वत हैं और हमेशा विद्यमान रहेंगे, सदा विद्यमान रहेंगे, तो ये चौथा बिंदु। So if you understood all these 4 points, naturally the concept called death will die in your thinking pattern. Why? Because though you're suffering with death, still your life continues. Death cannot stop you. Death cannot become a hindrance for your continuation of your life. Life continues forever and ever and ever and ever and ever. Death is not competent authority to stop your life for a while. Yes, death is not competent authority to stop your life at least for 1 single second. तो चौथे बिंदु का सबसे एक सारभूत अंश ये है कि मृत्यु, all the 4 if you understood. इन चारों बिंदुओं को यदि हम बहुत अच्छे से समझ सकें तो इसका सारभूत अंश ये निकल कर आएगा कि मृत्यु नामक अंश को ये अधिकार ही नहीं है कि वो हमें एक पल के लिए भी हमारे अस्तित्व को हमें अस्तित्व विहीन कर सके। हम चाहे ये इस शरीर में रहे या ना रहे, ये भूतल रहे या ना रहे, फिर भी हम सदा अस्तित्व में रहेंगे और मृत्यु नामक अंश को कोई अधिकार, कोई योग्यता ही नहीं है कि वो हमें एक पल के लिए भी हमें हमारे अस्तित्व से हीन कर सके। My dear aspirants, just try to understand this miraculous, mystical, magical teachings of Lord Sri Krishna. My dear aspirants, just try to understand this miraculous, magical, mystical teachings of Lord Sri Krishna. If you could just understand the insight of this particular teaching, then the consequence is the death will die. And you'll also realize that the so-called death, all these days, you're scared of death. ఇంత డిస్టర్బెన్స్ అవుతా ఉందంటే నాకు డిస్టర్బెన్స్ అంటే అంత డిస్టర్బెన్స్. ఆల్ దీస్ డేస్ యు ఆర్ స్కేర్డ్ ఆఫ్ డెత్. నాకు ఈ కదలికలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి, ఇట్లా కనిపిస్తుంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఆల్ దీస్ డేస్ యు ఆర్ స్కేర్డ్ ఆఫ్ డెత్. Death is the utmost worst thing. Everyone on this earth planet is scared of death. If you could understand this miraculous, magical, mystical teachings of Lord Sri Krishna, one fragrance is going to happen, one celebration is going to happen. The term death is going to be discarded from you, and you will realize that the so-called powerful death is unable to stop your life even for a single second. Please tell them. तो गुरु जी कह रहे हैं कि यदि इस श्लोक का सुंदर, अद्भुत अद्भुत, इतना अद्भुत श्लोक, ये जो ज्ञान है श्री कृष्ण ने हमें दिया है, यदि इस अद्भुत चमत्कारी श्लोक का अर्थ अगर हमारी समझ में आ जाए, ये ज्ञान हमें मिल जाए, तो डेथ, जो मृत्यु नाम का अंश है, वो पूरी तरह से हमारे जीवन से बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से निकल जाएगा। और इस मृत्यु नामक अंश जो है वो हमारे जीवन में से, हमारे पूरे जीवन में से एक क्षण को भी, एक पल को भी हमें हमारे इस जीवन को हमसे छीन नहीं सकेगा।
जिंदगी को रोकने का हैसियत मृत्यु को नहीं है, नहीं है, नहीं है। जिंदगी को रोकने का हैसियत, शक्ति मृत्यु में नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो गुरुजी कह रहे हैं कि जिंदगी को रोकने की हैसियत या योग्यता या शक्ति इस मृत्यु को है ही नहीं। एक पल के लिए भी ये मृत्यु जिंदगी को रोक नहीं सकती। ये अमृत तुल्य अंतरार्थ हमको मालूम हो गया तो मृत्यु का मरण हो जाता है। अगर अमृत तुल्य अंतरार्थ हमको मालूम हो जाता है, उसी क्षण मृत्यु का मरण हो जाता है। यदि ये अमृत तुल्य ज्ञान, अगर हमें ये अमृत तुल्य अंश यदि हमें समझ में आ जाए, यदि हमारे मस्तिष्क में प्रतिष्ठित हो जाए, तो उसी क्षण, इसी क्षण मृत्यु की मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु का बिल्कुल अंत हो जाएगा। Now, naturally, death is gone. The fear of death is gone. Worrying for the sake of death, everything is vanished from our thinking pattern. Now the new era is going to be celebrated in our thinking pattern. हमारा विचारधारा में एक नया जिंदगी का त्योहार मनाने का अवसर आ गया। हमारा विचारधारा में जिंदगी का त्योहार, मृत्यु का मरण हो गया और जिंदगी का त्योहार मनाने का शुभ मुहूर्त का संभव हो गया, अभी भी इसी वक्त, इसी क्षण। तो चूंकि ये ज्ञान हम सब अब प्राप्त कर चुके हैं, तो हमें ये जानकारी प्राप्त हो चुकी है, तो इसी क्षण चूंकि मृत्यु का पूरी तरह से मरण हो चुका है और हमारे जीवन में जीवन का एक, जीवन ने जन्म लिया है, जीवन के जन्म का उत्सव हमारे जीवन में इसी क्षण अब से आरंभ हो चुका है। तो मृत्यु का मरण और जीवन का आरंभ, जीवन ने जन्म लिया है हमारे जीवन में, तो इस जीवन के जन्म का महान उत्सव आज से हम मना रहे हैं। And one more astonishing thing is, the thing to be celebrated is, in this particular sloka, in the very beginning itself, Lord Sri Krishna has taught us Advaita. Because we were believing that as if Lord Sri Krishna is God, we are all human beings. And in the human beings, some are sinners, some are grand beings, some belong to higher caste, some belong to outdated caste. Like that we were thinking. Some belong to low caste, some belong to high caste. Like that we were thinking. Some is rich, someone are poor, someone are papi, and someone are very fortunate. Like that we are thinking. In this particular sloka, Lord Sri Krishna Sahitam sab means, and if you could read that sentence, ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे. Including Lord Sri Krishna, everyone means all of us. All of us means all the differences which were there in between us, all the भेद अभेद हो गया. सभी भेद इसी श्लोक में अभेद हो गया. और इसी श्लोक में हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि लॉर्ड श्री कृष्ण सिर्फ अद्वैत ही बताया, सिर्फ अद्वैत ही बताया. अद्वैत, भेद को अभेद करने वाला ही अद्वैत है. ईश्वर और इंसान में जो भेद भाव अब तक है, वो भेद अभेद में बदल गया इस श्लोका से. और इस श्लोका से ऐसे ये भी मालूम हो रहा है कि और आगे भी लॉर्ड श्री कृष्ण अद्वैत को ही बोल रहे हैं. अगर आप द्वैत बोल रहे हैं तो ऐसा भेद अभी भी बढ़ जाएगा, लेकिन ये भेद अभेद में बदल गया. यस, टेल देम. तो गुरुजी कह रहे हैं कि इस सुंदर श्लोक में, इस अद्भुत चमत्कारी श्लोक में श्री कृष्ण ने अद्वैत हमें सिखा दिया है, हमें अद्वैत समझा दिया है. क्योंकि श्री कृष्ण कह रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने हम सब पूरी मानव जाति में, आज तक हम समझ रहे थे कि श्री कृष्ण बहुत महान हैं, वे भगवान हैं, और हम सब बहुत उनसे निम्न श्रेणी के हैं. ईश्वर और इंसान के बीच में जो भेद है, उस भेद को अभेद कर दिया एक ही श्लोक में. ईश्वर और इंसान में जो भेद उपस्थित है आज तक, एक ही श्लोक में ईश्वर और इंसान के बीच में भेद को अभेद कर दिया इसी श्लोक में. इतना महत्वपूर्ण है ये श्लोक.
please. तो गुरुजी कह रहे हैं कि ये श्लोक इतना महत्वपूर्ण, इतना जानकारी, इतना अद्भुत है कि इस श्लोक ने ईश्वर और इंसान के बीच का भेद पूरी तरह से मिटा दिया और हमें अभेद दर्शन दिखा दिया। सो ईश्वर और इंसान के बीच के इस भेद को पूरी तरह से जड़ से समाप्त करके अभेद दर्शन दिखाने वाला इतना सुंदर चमत्कारी ये श्लोक है। So the entrance of this particular sloka into your thinking pattern is the exit of शोक. श्लोक आता है, शोक जाता है. Yes. तो गुरुजी कह रहे हैं कि ये अद्भुत श्लोक जब आपके मस्तिष्क, आपके मस्तिष्क में जैसे ही इस श्लोक ने प्रवेश किया तो आपके जीवन में से शोक ने पूरी तरह से आपके जीवन से बाहर निकल गया। सो श्लोक का प्रवेश, इस श्लोक का प्रवेश होते ही शोक आपके जीवन से, आपकी विचारधारा से पूरी तरह से गुजर गया। Right. So the five important, the nucleus of this particular sloka is step number 1, including Lord Sri Krishna. All of us, including Lord Sri Krishna, we were enjoying the beautiful existence from since. आदिकाल से कृष्ण सहित हम सब एक त्योहार मना रहे हैं, अस्तित्व का त्योहार मना रहे हैं शुरुआत से, आदिकाल से. The first and foremost thing. Second thing is, including Lord Sri Krishna, all of us has emerged into existence at a stage. ईश्वर कृष्ण सहित हम सब एक ही काल में अस्तित्व में आ पहुंचे. Number 2. Number 3, we are not from creation. It is we have created the creation. हम सृष्टि से नहीं है, बल्कि सृष्टि ही हमसे है. We have created the creation. हम सृष्टि किया. That is why we are always pure, perfect being. Fourth thing is, we are going to exist forever. And then so far the death is very strong. Now the death has become very weak, fragile, and death has lost it is lost. This sloka is the last breath of the death. So मृत्यु का मरण हो गया, क्योंकि we are going to exist forever and ever and ever. And the fifth thing is, Lord Sri Krishna is इसी श्लोक में ईश्वर और इंसान के बीच में जो भेद उपस्थित है, उस भेद को अभेद कर दिया, क्योंकि he said all of us. This is the nucleus of this श्लोक. सारभूत अंश है. 5 एक बार बता देना बेटा, आज के लिए बस. तो गुरुजी कह रहे हैं कि इस द्वितीय अध्याय के 12वें अद्भुत चमत्कारी श्लोक के एक सारभूत 5 बिंदु वे हमें स्पष्ट करना चाह रहे हैं. सबसे पहला बिंदु कि हम सब कृष्ण सहित, भगवान श्री कृष्ण सहित, परम गुरु श्री कृष्ण सहित हम सब आदि काल से ही अपने अस्तित्व का उत्सव, त्योहार मनाते आ रहे हैं. द्वितीय बिंदु कि श्री कृष्ण सहित हम सब एक ही काल में, एक ही समय में हम इस अस्तित्व में आ पहुंचे हैं. कृष्ण पहले आए और हम सब बाद में आए, ऐसा बिल्कुल नहीं है. हम सब कृष्ण सहित हम सब एक ही समय में एक साथ इस अस्तित्व में आ पहुंचे. तीसरा बिंदु है कि श्री कृष्ण, तीसरा बिंदु कि हम सब एक ही काल में, ऐसा कोई काल नहीं था कि हम अस्तित्व में नहीं थे. तो श्री कृष्ण सहित हम सब एक ही काल में जब आए तो इससे स्पष्ट होता है कि ये सृष्टि हमसे आई, ये सृष्टि हमसे जन्मी, हमसे उत्पन्न हुई. सृष्टि से हम नहीं हैं, बल्कि सृष्टि हमसे उत्पन्न हुई. परफेक्ट. देन चौथा पॉइंट कि इन तीनों अंशों को यदि चौथा बिंदु कि इससे आगे भी ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हम अस्तित्व में नहीं रहेंगे. तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम सब शाश्वत हैं, हम सब शाश्वत हैं, कृष्ण सहित हम सब शाश्वत हैं. इन चारों बिंदुओं को अगर हमने बहुत ही अच्छे से जान लिया तो
पांचवा बिंदु ये उभर कर आता है कि हमारे जीवन से मृत्यु नामक अंश का मरण हो जाता है। हमारे जीवन से ना तो मृत्यु रहेगा, जब मृत्यु का मरण हो गया तो मृत्यु की ना चिंता सताएगी और ना ही मृत्यु का भय हमारे जीवन में रहेगा। देन बहुत ही इसका अद्भुत एक आखिरी अंश ये है कि श्री कृष्ण ने इस अद्भुत श्लोक में भगवान, ईश्वर और इंसान के बीच का जो भेद है उसको हमेशा के लिए मिटा के रख दिया है, हमें अभेद दर्शन करा दिया। ये अद्वैत, हमें पूरा अद्वैत का दर्शन करा दिया कि ईश्वर और इंसान के बीच में कोई भी भेद नहीं है, हम सब एक साथ हैं, थे और रहेंगे। Something beautiful. So celebrate Bhagavad Gita, celebrate this knowledge, celebrate your life. Let us celebrate Bhagavad Gita, celebrate this sloka, celebrate the knowledge forever and ever, forever. For today, I'm stopping here. Tomorrow, let us learn sloka number, chapter number 2, verse number 30. Namaskar. तो गुरु जी कह रहे हैं कि आइए आज से हम सब इस भगवत गीता का, इस ज्ञान महोत्सव का उत्सव मनाते रहेंगे। अब से हमारे जीवन में ये भगवत गीता का उत्सव आरंभ हो चुका है। तो आज के लिए गुरु जी यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। कल की क्लास में 13th श्लोक हमें और अच्छे से समझाएंगे। धन्यवाद। I mean to say, जिंदगी का उत्सव मनाएंगे, गीता शास्त्र का उत्सव मनाएंगे, का उत्सव मनाएंगे। सिर्फ उत्सव ही उत्सव हमारे जिंदगी में, सिर्फ उत्सव ही उत्सव। ओके, नमस्कार, जय अस्त। नमस्कार गुरु जी, धन्यवाद। आप